Hello everyone, this is Mr. Suman Kumar Tiwari, Chemistry Faculty, Bokaro. Today I will discuss about P block elements of class 12, but before that a little bit I will discuss about the syllabus change for this year due to COVID pandemic for 21-22 class 12 board, right? So let's first see about the portions which is given for the term 1. You know there are two terms in this year, term 1 and term 2. Term 1 will held in MCQs in the first week of November probability, and the second terms will be held on the last week of the March or first week of the April, right? So it is now probability, that is not declared so far. We will update if any update will come from the CBSE site, right? So in chemistry class 12, the topic we have to complete in term 1, that is solid state solutions, P block elements, haloalkanes and halorines, alcohol phenol ethers and biomolecules. That means two chapters from physical chemistry, that is solid state and solutions, one big chapter from inorganic chemistry, that is P block elements today that I will start, and three topics from organic chemistry in volume 2, NCERT volume 2, first unit, that is unit number 10, haloalkane and halorines, second unit, that is unit number 11, alcohols, phenol and ethers, and the second last chapters of the organic chemistry, that is biomolecules. So overall marks we have to face here 35 in term 1, and similarly for term 2 it will be also 35. So overall 35 plus 35 will be the 70 and 30 practicals. Clear? So practical will be taken by the CBSE, by the board, as it is every year taken. So the marks distributions in the physical chemistry 10 marks, that means in solid state 5 marks and solutions 5 marks, but here not exactly clear that 5 marks plus 5 marks is 10 marks, but 10 marks overall from physical chemistry एंड 10 मार्क्स फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे, एंड मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो रीजन का क्वेश्चंस हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि हर एक रीजनिंग क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे. और कुछ कुछ सिलेबस में घटाया गया है. आई थिंक 25% इज रिड्यूस्ड in this year also, just like previous year in previous year 2021, 21 and 22, this session will also the same syllabus will be followed for the board examination, right? But no deductions of the syllabus in IIT or NEET or other any competitive examination or entrance examinations. मतलब entrance और competitions के लिए पूरा NCERT तो रहेगा ही, उससे भी ज़्यादा कुछ रहेंगे, राइट? तो ये टर्म 1 का हम सिलेबस बता रहे थे. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द टर्म 2. सो सी द टर्म 2 इन द थ्योरेटिकल पोर्शंस. अगेन 3 chapters from physical chemistry containing 13 marks, electrochemistry, chemical kinetics and surface chemistry. 2 chapters from inorganic, D and F block elements and coordination compounds containing 9 marks, and 2 chapters from organic also containing 13 marks. So alcohols के बाद है एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एमीन्स, ये दोनों ऑर्गेनिक से रहेंगे. रेस्ट फिजिकल से ज़्यादा है 13 मार्क्स. हालांकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक और फिजिकल में सेम ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स काफ़ी बड़ा टॉपिक्स हुआ करता है. और डी एंड एफ प्लस कोऑर्डिनेशन दोनों टॉपिक को मिला करके इनऑर्गेनिक में 9 मार्क्स दिया हुआ है, राइट? और सिलेबस भी बहुत कुछ घटाया गया है, तो सीबीएसई के साइट्स में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है. केमिस्ट्री कोड है 043, तो सिलेबस सर्च करने से मिल जाएगा.
CBSE के साइट्स पर, ऑफिशियल साइट्स पर, सिलेबस फॉर सेशन 21-22 क्लास 11-12 केमिस्ट्री कॉल्ड 043. So now move toward the P block elements. What we have to study in P block elements especially. तो यदि हम लोग क्लास 12 का P block elements देखें तो P block elements मतलब क्या होता है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18. तो 13, 14 क्लास 11 में रहते हैं, दैट इज बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, राइट. तो वो सब लोग को नहीं पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. 15, 16, 17 and 18 this belongs from class 12. So questions will arises from the group number 15, 16, 17 and 18. But 15 में भी बहुत सारा चीज़ों को हटाया गया, जैसे फॉस्फिन्स को हटा दिया गया, फॉस्फोरस बहुत सारे कंपाउंड्स को हटाया गया है. तो सी द सिलेबस फॉर दिस ईयर 21-22 क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जनरल इंट्रोडक्शंस पहले है, जनरल इंट्रोडक्शंस, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स दैट लाइक nitrogen family, oxygen family, halogens in inert gases, then oxidation state, then trends in the physical and chemical properties, nitrogen preparation, properties and uses. तो nitrogens के बारे में सारा कुछ है, preparation, property, uses. compounds of nitrogens में हम लोग को पढ़ना है preparations and properties of ammonia and nitric acids, ये दोनों है. now group number 16 general introductions. मतलब यदि ग्रुप नंबर हम लोग 15 देखें तो फॉस्फोरस है ही नहीं, फॉस्फोरस का एलोट्रॉप्स, फॉस्फीन्स, फॉस्फोरिक एसिड्स ये सारे हटा दिए गए हैं. तो बहुत इजी है क्योंकि बहुत कुछ पार्ट को हटाया गया है, राइट. नाउ 16 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्यूरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, यूजेस, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर, एलोट्रॉप्स फॉर्म. तो ऑलमोस्ट ऑक्सीजन और सल्फर सारा कुछ दिया हुआ है. कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो सारा कुछ दिया हुआ है. 17 जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. तो HCl भी है ही सिलेबस में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड सारा है ही इधर से. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, स्ट्रक्चर ओनली. तो ऑक्सो एसिड्स को हटाया गया है, सिर्फ स्ट्रक्चर से पढ़ना है, स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चंस आएंगे. एंड ग्रुप नंबर 18 जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. तो ये सारा पी ब्लॉक का पोर्शंस वी हैव टू कवर्ड इन दिस ईयर, राइट. So let's start P block elements in details. So this is the first class, so it will be the lecture 1. This is why there are 6 columns in the P block. There is a simple relationship. So P block elements contains group number 13 to group number 18. Group number 13 is also called boron family, 14 is called carbon family, 15 is called nitrogen family, also called panicogens. Group number 16 is called oxygen family, also called chalcogens. And group number 17 is called fluorine family or halogens. And group number 18, that is the last group in the periodic table present in the extreme right hand sides, are called inert gases or noble gases. Also group number 0 in old periodic table, but in modern periodic table we can see it is group number 18, right. So group number 5 and 6, sorry, 13 and 14 boron family and carbon family are studied under the syllabus of class 11 p block elements. हम लोग boron family और carbon family क्लास 11 में p block elements में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट. तो हम लोग का यहाँ से नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ना है, फ्लोरिन्स मतलब हेलोजेंस पूरा पढ़ना है, और इनर्ट गैसेस इसमें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन्स ये सब का स्टडी करना है. बट इसमें भी इस साल फिर से सिलेबस में अप टू 25% रिड्यूस्ड हुआ है. सो पोर्शंस आर रिड्यूस्ड. सपोज इन ग्रुप नंबर 15 दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन क्लास 12, तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही पढ़ना है और नाइट्रोजन का कंपाउंड्स पढ़ना है. फॉस्फोरस इस साल पूरा डिलीटेड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेफरेंस बुक में दिया हुआ है. बट फॉर दिस ईयर
सिलेबस इज रिड्यूस ड्यू टू द सेम सिचुएशंस ऑफ कोविड पेंडेमिक। तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है इसलिए सिलेबस को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। मतलब फॉस्फोरस से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को हटा दिया गया है, पूरा फॉस्फोरस भी हटा दिया गया है। मतलब फॉस्फोरस का ऑकरेंस तक ही सिर्फ दिया हुआ है। फॉस्फोरस का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉस्फीन, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड्स, ठीक है, फॉस्फोरस का ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स, ये सब पूरा हटा दिया गया है। तो सिलेबस में जब नहीं है तो हम लोग को स्टडी करना है, बट स्लाइटली करेंगे, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशंस आगे हम लोग फ्यूचर में यूज़ होगा। और ऑर्गेनिक में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं, PCl3, PCl5 का, फॉस्फोरिक एसिड्स का भी यूज़ करते हैं। तो बेसिक नॉलेज जानना ही पड़ेगा, क्योंकि IIT और मेडिकल के सिलेबस में कुछ भी नहीं हटाया है, सिर्फ CBSE के सिलेबस में हटाया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को फ्यूचर भी देखना पड़ेगा। ये ऐसा पढ़ाई ही नहीं करना है जिससे सिर्फ हम लोग अभी पास कर जाएं, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो। तो कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, तब कुछ कर सकते हैं। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, ये तो ओनली फॉर शो के लिए होता है कि 10 में इतना आया, 12 में इतना आया, राइट। तो आजकल रिजल्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है नॉलेज, ठीक है। पहले रिजल्ट के बेसिस पर कुछ भी होता था, अब कोई भी ऐसा इंटरव्यू या कोई भी ऐसा जॉब या कोई भी ऐसा एडमिशन डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पर नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको पता है मार्क्स का प्रोसीड्यूर क्या हो गया है, ठीक है। तो लक यहाँ फेवर कर रहा है, जिसका लक 10 में अच्छा है या 9 में अच्छा मार्क्स किया है, 11 में भी अच्छा स्कोर है, उसका अच्छा आ जा रहा है। जिसका कहीं पुअर हो गया तो ओवरऑल इसका सारा पुअर हो जा रहा है, ठीक है। तो वो मार्किंग स्कीम जो CBSE बनाया गया है, के द्वारा बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। एनीवे, हम लोग को डार्क पॉइंट्स नहीं देखना चाहिए, फीचर्स देखना चाहिए। बहुत सब में डार्क पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। जब बड़ा बड़ा हम लोग देखते हैं एटॉमिक मॉडल्स और जो रिसेंट डिस्कवरी है उसमें इतना सारा डिमेरिट्स है। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल जो सबसे अच्छा मॉडल माना जाता था, उसमें लॉट्स ऑफ डिमेरिट्स निकला। फिर जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल्स आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको सबसे सुपर एटॉमिक मॉडल्स बोला गया था, उसमें भी 6 डिमेरिट्स निकाल दिया, तो डिमेरिट तो निकलेगा ही। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया, उसमें भी 2 डिमेरिट निकला। एनीवे, डिमेरिट तो निकलेगा ही। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में डिमेरिट्स निकला, तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। अभी तो एलिमेंट्स 135 प्लस हो चुका है, तो अब तो मॉडर्न वाला में भी डिमेरिट्स निकल गया है, जो कि सिलेबस में नहीं दिया है, हायर क्लास में वो सब स्टडी होगा। सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 13, 14, 15 to 18 एंड देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस से हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को क्लेरिफाई कर पाएंगे। कैसे क्लेरिफाई कर पाएंगे? तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना वो नियर अबाउट चले जाएंगे इनर्ट गैसेस के, राइट। दैट मीन्स they have strong tendency to attract the bonded pair of electron toward itself. That means electronegativity increases. तो लोग तो ये क्लास 10 से ही जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जानने से कोई भी पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि वो इनर्ट गैस के आसपास जा रहा है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है और अपने और अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी वो बढ़ा जा रहा है। जबकि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड्स में इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी बढ़ता है, राइट। इफ वी मूव फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, एंड इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो ये चीज़ जानना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्लियर होता है, राइट। सो सी ग्रुप नंबर 13 called boron family, 3 valence electrons are there. So its electronic configuration is ns2 np1, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही ग्रुप निकालते हैं, ग्रुप निकालने के लिए p ब्लॉक में, s ब्लॉक में, d ब्लॉक में अलग अलग रूल्स है। जैसे हम लोग 11 में ही पढ़ चुके हैं, ग्रुप निकालना है ग्रुप s ब्लॉक का, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है s में वही ग्रुप्स होता है। सपोज किसी में 1s, किसी में s1 है तो वो ग्रुप नंबर 1 का हो जाएगा, किसी में s2 है तो ग्रुप नंबर 2 का हो जाएगा। d ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करते थे, तो नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते थे। तो d इलेक्ट्रॉन्स यदि 1 है तो उसमें हम लोग 2 ऐड कर देते थे, तो 3 ग्रुप्स का हो जाता था, ग्रुप नंबर 3 का हो जाता था, जैसे स्कैंडियम है, ठीक है। तो सब में मतलब +2 जोड़ना है जो d में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें से, राइट। तो ns इलेक्ट्रॉन्स और nd इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वहाँ ऐड करते थे, n-1d, सॉरी। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 10 पहले लेंगे, प्लस ऐड करेंगे,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS एंड NP। तो NS में और NP में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 10 जोड़ दो, ग्रुप नंबर निकल जाएगा। जैसे ग्रुप नंबर 13 निकालना है तो 10 प्लस NS और NP इलेक्ट्रॉन्स। तो NS इलेक्ट्रॉन्स 2 है, NP इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 10 इक्वल टू 13। सिमिलरली फॉर ग्रुप नंबर 14 हम लोग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। ग्रुप नंबर 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। सिमिलरली 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उसमें 10 ऐड कर देना है, हम लोग का ग्रुप नंबर निकल जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो ये ग्रुप निकालने का प्रोसेस था। पीरियड निकालने का प्रोसेस, हाईएस्ट क्वांटम नंबर को देखेंगे, तो जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर का वैल्यू n का वैल्यू आएगा दैट विल बी द पीरियड्स, राइट। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स निकाल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली निकल जाएगा। सो इट्स सम स्टूडेंट्स आर इन लॉबी, उसको हम एंट्री कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू। Let's see, some students are in lobby. ऋषिका द्वारी, Cross each column to the right. The columns or groups each gain an additional valence electron. The exception, of course, is helium, which has only 2 electrons. तो हीलियम यहाँ एक एक्सेप्शंस है। क्यों हीलियम एक्सेप्शंस है? क्योंकि हीलियम p ब्लॉक एलिमेंट्स का होते हुए भी वो s ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। बिकॉज डेफिनेशंस क्या है p ब्लॉक एलिमेंट्स का? दोज एलिमेंट्स whose last electron enter into p subcells are called p block elements, right? Similarly s block elements का हम लोग डेफिनेशंस क्लास 11 में किए थे। दोज एलिमेंट्स whose last electron enter into s subcells are called s block elements। d ब्लॉक के लिए डेफिनेशंस क्या था? Those elements whose last electron enter into d subcells are called d block, and for f block के लिए similarly last electron enter into f subcells are called f block elements। बट यदि हम लोग हीलियम को देखें तो यहाँ ये एक्सेप्शंस है। बिकॉज इन हीलियम यू कैन सी इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। सो इफ इट इज 1s2 देन इट मस्ट बी द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s ब्लॉक। सो हीलियम को हम लोग s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, बट ये p ब्लॉक में रखा जाता है। क्यों? एक्सेप्शंस है। इट इज 100% सिमिलर टू दैट ऑफ द इनर्ट गैसेस। ये कंप्लीटली इनर्ट होते हैं हीलियम, और जस्ट बिहेवियर लाइक है नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन्स का। दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन द इनर्ट गैसेस, नॉट इन s ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? तो यहाँ एक एक्सेप्शंस मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। तो सीधा एनिमेशंस। अब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या -2 में वेरिएट करेगा। किसी का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज 2 है तो उसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। किसी का यदि 3 है तो हम लोग 2 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा। 5 है इसमें तो 2 माइनस कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस एनिमेशंस में दिखाया गया ग्रुप नंबर 13, 14 से 18 तक का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। सी डिटेल्स। So see the group oxidation state of boron family, that is group number 13, carbon family group number 14 and nitrogen family group number 15। तो 3, 4, 5 ये सारे प्लस में,
ठीक है, मतलब इसमें यदि 2 ऐड कर देंगे तो ग्रुप नंबर जो 13 है वो 5 भी शो कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन 4 होते हैं तो ये 6 तो नहीं लेकिन 2 शो कर सकते हैं कार्बन फैमिली वाले, तो 4 + 4 में -2 कर देंगे। और जैसे नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन फैमिली में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, जो नाइट्रोजन तो कभी नहीं शो कर पाता लेकिन फॉस्फोरस शो कर पाता है, जैसे PCl3 भी कर पाता है, PCl5 भी कर पाता है, तो वहाँ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन नाइट्रोजन हमेशा मतलब 3 में रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो 5 है तो 5 में हम लोग 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 3 हो जाएगा, तो 3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड होते हैं। तो देखो अब हम लोग सारे ग्रुप्स का स्टडी करेंगे एक साथ। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ग्रुप नंबर 13 का अदर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 भी होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं 3 जब होता है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। 14 4 -4 तो होता है लेकिन +2 भी होगा। ग्रुप नंबर 15 का 3 होता है और 5 भी होता है, तो 5 यहाँ नहीं दिया हुआ है, एन भी हमको लगता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 5 भी होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 में हम लोग फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा इस तरह से देखते हैं। According to Wikipedia, phosphorus is a chemical element with the symbol P and atomic number 15. नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 का हम लोग देख सकते हैं +2 -2 एंड +4, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है तो 6 2 8 हो जाएंगे। 17 का +1 -1, ये तो होगा ही होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और +5 भी होंगे, +3 भी होंगे, लेकिन कम होंगे। ग्रुप नंबर 18 का तो ऐसे इनर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होना चाहिए, बट +2 +4 और +6 भी शो करता है। ये हम लोग क्लास 12 में स्पेशली देखेंगे। कुछ ही एलिमेंट्स कंपाउंड्स बना पाते हैं, जिसमें जिनन पहला एलिमेंट्स है जो कंपाउंड्स बना पाता है। अभी तो बहुत सारे एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहा है, बट जिनन डाइफ्लोराइड, जिनन टेट्राफ्लोराइड, जिनन हेक्साफ्लोराइड्स, ये सब काफ़ी मतलब जिनन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड से काफ़ी यूज भी होता है इसका इंडस्ट्रियली। ठीक है, तो इट्स सम स्टूडेंट्स यार लॉबी, तो हम एक बार लॉबी को चेक कर लेते हैं। साउंड सारा था कुछ स्टूडेंट्स का, तो परहैप्स दे आर ज्वाइंड। अच्छा, हम मोबाइल को गेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें से इसको ऑर्डर दे देते हैं। मैक होस्ट, उसको होस्ट बना देते हैं, तो क्या होगा, हमें स्क्रीन बैक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डू यू वांट टू मेक समन कुमार तिवारी एड? यस, हम होस्ट चेंज कर दिए, मोबाइल से ही सारा कुछ यहाँ से कर लेंगे। सिस्टम में बार बार बैक होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। So after oxidation state, Stability of oxidation states that are 2 less than the group oxidation state are sometimes attributed to the inert pair effect. तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये रिलेटेड है, जो +2 और -2 हम लोग करते हैं। जैसे ग्रुप ऑक्सीडेशन किसी का भी कुछ भी है तो उसमें हम लोग या तो 2 घटा सकते हैं या तो 2 बढ़ा सकते हैं, तो वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। ये क्यों होता है? तो ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्ट, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एक पेयर जो होता है वो इनर्ट में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम लोग जब 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, अभी तो ये सब रिवीजन कर रहे हैं क्लास 11 का, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट्स का भी डिस्कस करेंगे, राइट। Oxidation state 2 less than the group
देखो टू लेस देन और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बता रहा है. from group to group. Metalloids and non-metals are found only in the P block of the periodic table. Down the column, the non-metal character of the elements decreases. The heaviest element in each column has the most metallic character of that family of elements. There is a lot of diversity in the properties of P block elements. Since a given family may have metals, metalloids, and non-metals. तो यहाँ तीनों होते हैं, मेटल्स भी हैं, Metals and नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय अ zigzag लाइन that belongs to metalloids. That means it acts as metals and non-metals both according per the conditions. जैसे conditions रहेगा, जैसे हीट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा मूव फास्ट कर जाएगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा. फिर जो कोल्ड स्टेट में आ जाएगा तो वो नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करना स्टार्ट कर देगा. क्लियर. डोपिंग कर देंगे तो मेटल्स की तरह एक्ट करेगा वो. when comparing metals and non-metals typically have higher ionization energies than metals. Electronegativities of non-metals are generally higher than that of metals. Therefore, metals readily lose electrons, forming cations. Non-metals typically gain electrons, forming So this is the difference between metals and non-metals. High ionization enthalpy is the properties of non-metals. Low ionization enthalpy, that means very less amounts of energy is required to remove the last electrons present in the gaseous state metal atoms to form cations, is called ionization enthalpy. तो कम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगा मेटल्स में, लेकिन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर ही नहीं सकते हैं लोअर एनर्जी में, बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होगा. Similarly, non-metals have high electronegativity while metals have low electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं. द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अपने और इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है वो नॉन मेटल्स में ज़्यादा होता है, राइट. सो वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टर होते हैं, जबकि मेटल्स ऐसा नहीं करते, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. सो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. And the third property is given for non-metals gains electrons to form anions, and for metals losses electron to form cations, that is positive charge ions. Clear. तो ये काफ़ी important है properties of metals और non-metals में. Periodicity में हम लोग उसको study करेंगे यहाँ. formed See the animations. on metal are ionic in nature. This is due to the large electronegativity difference between the elements. Metal transfers an electron to the non-metal, and the oppositely charged ions that result are strongly attracted to each other. Compounds between two non-metals tend to be primarily covalent in character. Small differences in electronegativity result in the shedding of electrons. Oxides of non-metals are either acidic or neutral in nature. अब ये हम लोग देख सकते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर, तो ये सब क्लास 12 में नहीं मिलेगा, 11 में ही था. इसलिए हम लोग अब 11 को छोड़ करके 12 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 11 का जो मेन पोर्शंस था वो हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, राइट. तो नाइट्रोजन्स का ऑक्साइड्स एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल्स भी होते हैं. बेसिक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड्स आर ओनली द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. मेटल ऑक्साइड्स बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, एम्फोटरी भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं प्रीडोमिनेंटली दे आर बेसिक, राइट. सो नाइट्रस एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड्स, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल्सो. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स को यदि हम लोग डिजोल्व कराते हैं वाटर में, देन इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड्स HNO3 एंड नाइट्रस एसिड HNO2. तो दोनों ही एसिडिक होते हैं. दैट मीन्स दिस ऑक्साइड इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. जो ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व करके एसिड्स देगा वो ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और जो ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व करने के बाद बेसिक सॉल्यूशंस देंगे दे आर कॉल्ड ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड्स, राइट. Acidic oxides, such as nitrogen dioxide, will form acids
water, hydroxide ions will form. तो ये बेसिक हो जाएंगे, ठीक है। Let's focus on the group that elements. Members of the boron family include boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. तो ये सब तो क्लास 11 में है बोरॉन फैमिली, क्योंकि हम लोग को ग्रुप नंबर 13, 14 क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। 15 से स्टार्ट होगा नाइट्रोजन फैमिली से। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम शॉर्टकट में याद करने का एक प्रोसेस भी बताए थे। तो क्या प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं? B4। तो शॉर्टकट जो साइकोलॉजिकली याद करते हैं 1 सेकेंड्स में याद हो जाएगा। एक बार सुनो, यदि अच्छा से माइंड रहेगा तो एक ही बार में याद हो जाता है। क्या बताए थे? बी का यदि हम लोग बोरॉन का बैंगन ले लें, एल्युमिनियम का आलू ले लें, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। बैंगन मतलब बोरॉन हो गया, आलू एल्युमिनियम, गाजर गैलियम, इन इंडियम, थैली का थैलियम। क्लियर? तो इस तरह से साइकोलॉजिकली याद कर सकते हैं, बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। पूरा रटने का कोई रॉट मेमोरी का कोई नीड ही नहीं होता। तो ये सब साइकोलॉजी लगा करके केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है इजी करने के लिए। क्लियर? तो ये सब ट्रिक्स यूज़ करना है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कुछ याद रखने के लिए। Oxide is oxide. Aluminium oxide and gallium oxide आर एम्फोट्रिक, तो एसिडिक बेसिक दोनों होते हैं। act as both. The oxides of indium and thallium are basic. क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं। In the P block, that would be boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and helium. Have the smallest atomic radius in their respective families. Each of these exhibits some anomalous behavior as a result. For example, the elements in period 2 have a maximum covalence of 4. They never exceed 8 electrons because they can only use their 2s and 2p orbitals in bonding. For example, boron can form the complex ion Bf. Elements in period below can since these elements have unused bond, they can have more than 8 electrons. Therefore, we observe the hexafluoroaluminate ion. We often observe that the first member in each group in the P block can form multiple bonds to itself and other elements in period 2. For example, carbon can form multiple. तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यूनिट नंबर 7। यहाँ से हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है। अब हम लोग 12 का NCERT बुक्स का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कुछ ही मिनट बचा हुआ है, फिर हम लोग का टाइम भी ओवर हो जाएगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली हम लोग का दिया हुआ है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट्स यू विल एबल टू अप्रिशिएट जनरल ट्रेंड्स इन द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18। मतलब यही हम लोग को पढ़ना है। 14, 13 सिलेबस में नहीं है, दैट इज इन क्लास 11, राइट। लर्न द एप्रिसिएशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डाइनाइट्रोजन्स एंड फॉस्फोरस एंड सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो डाइनाइट्रोजन और फॉस्फोरस पढ़ना है, जबकि फॉस्फोरस इस साल सिलेबस के लिए आउट है, तो हम लोग ओनली डाइनाइट्रोजन्स को ही पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेज ऑफ डाइनाइट्रोजन्स, ओजोन एंड डाइऑक्सीजन एंड ओजोन एंड केमिस्ट्री ऑफ सम सिंपल ऑक्साइड्स। तो हम लोग ऑक्सीजन और ओजोन्स को पढ़ेंगे मेनली ऑक्सीजन फैमिली में। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर्स को पढ़ेंगे कि सल्फर्स का कौन कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड। तो सल्फर का ऑक्सो एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड्स, पैरासल्फ्यूरिक एसिड्स, ये सब हम लोग को पढ़ना है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन और HCl हम लोग को पढ़ना है, इंपॉर्टेंस है। नो द केमिस्ट्री ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स। तो हेलोजन्स का भी ऑक्सो एसिड्स को हम लोग को पढ़ना है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स।
इन्यूमरेट द यूज ऑफ नोबेल गैसेस, तो नोबेल गैसेस का यूजेस को हम लोग देखेंगे, और अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तुम्हारे डे टू लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 15 नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर होगा और अदर एलिमेंट्स हो जाएंगे नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिसुमथ, जिसमें से नाइट्रोजन गैस होते हैं, रेस्ट सारे सॉलिड्स होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास वी विल सी इन डिटेल्स। आज यहीं तक रहने देते हैं। वेट फॉर अटेंडेंस। तो अटेंडेंस यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन जूम में नहीं दिया है, हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वेट, स्क्रीनशॉट 1 इज टेकन अप टू अमन कुमार, अमन पाठक, अंकिता, आशुतोष, सत्यप्रिया, शुभम कुमार, कपिस 2। तो निखिल, प्रियांशु, ऋषिका, रितेश, सलोनी, स्नेहल मिश्रा, सुमित कुमार, रिंकू सोरेन, युवराज गुप्ता। अटेंडेंस टेकन, नाउ यू कैन मूव। थैंक यू। एप्लीकेशंस करें या आयरन का देखें या गोल्ड का देखें या प्लेटिनम का देखें, कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड होगा पी ब्लॉक एलिमेंट से, बिकॉज मोस्टली एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक्स आर वेरी यूजफुल। सारे यूजफुल एलिमेंट्स पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक भी यूजफुल एलिमेंट्स में भी है, एस ब्लॉक में भी है, बट पी ब्लॉक का थोड़ा ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि इसमें ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दैट आर द टू बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मेटालॉइड्स, राइट। सो ग्रुप नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ, ठीक है। Now let us turn to the study of group 15 elements. Let's first discuss the occurrence of these elements. So see these elements of group number 15 called nitrogen family, also called chalcogens, sorry panicogens, not chalcogens, chalcogens oxygen family होता है, so it is known as panicogens because they have smell। तो एक सफोकेटिंग स्मेल प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन का कंपाउंड, फॉस्फोरस का कंपाउंड, आर्सेनिक का कंपाउंड, एंटीमनी एंड सिमिलरली बिस्मथ। बिस्मथ में थोड़ा लेस होता है, बट जो टॉप में है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, उसके ऑलमोस्ट कंपाउंड्स एक सफोकेटिंग स्मेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड पनिको इन लैटिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पनिकोजेंस और पनिकोमाइड्स। तो नाइट्रोजन का हम लोग अमोनिया देखें, फॉस्फोरस का फॉस्फिन देखें, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखें, या फॉस्फोरिक एसिड देखें, सब में ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो यहाँ हम लोग को अकरेंस ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स का स्टडी करना है। व्हाट आर द अकरेंस वेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। तो हम लोग को पता है 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स ऑफ एयर। एयर के साथ ही 78% मिक्सअप है नाइट्रोजन, राइट। इसके साथ साथ यदि हम लोग कंबाइंड फॉर्म में देखें तो चाइल्ड सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, और बहुत सारा कंपाउंड्स में पाया जाता है। सिमिलरली फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स शो करते हैं, तो बोन में भी ये फॉस्फोरस पाए जाते हैं, फॉस्फेट्स में पाए जाते हैं। तो फॉस्फेट्स का बहुत सारा फैमिलीज हैं, वो सब में फॉस्फोरस पाए जाते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ रेयर एलिमेंट्स बहुत कम पाए जाते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। सो सी द अकरेंस गिवन हियर फर्स्ट। Elements 15 are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Nitrogen is the major constituent of the Earth's atmosphere and accounts for 78% of it by volume. It is the first member of this group and occurs in free state as a diatomic gas, N2. No other element of this group exists in free state. तो रेस्ट जितने भी मेंबर्स हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दे आर इन सॉलिड स्टेट्स,
first member nitrogen is exception, that is present in the gaseous state and free state. Rest other are present in their combined state, they are not occur in their free state, right, and they are solids. तो ये पहला हम लोग का एक्सेप्शन यहाँ मिल रहा है नाइट्रोजन के फॉर्म में. क्लियर. सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एनिमेशंस. It mainly occurs in the form of minerals such as chili salt petre and Indian salt petre. सॉल्ट पीटर्स होते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन यहाँ थोड़ा अलग दिया हुआ है. सो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन्स मेन कंस्टिट्यूएंट्स में होते हैं बिकॉज अल्फा एमिनो एसिड्स आर द मोनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोटीन्स. जितने भी तरह का प्रोटीन्स होते हैं सब में अल्फा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड्स पॉलीमराइज करके लॉन्ग चेन बनाते हैं प्रोटीन्स का. तो अल्फा एमिनो एसिड्स में तो एमिनो रहेगा, सो NH3 और इट्स डेरिवेटिव्स ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड. तो प्रोटीन पेप्टाइड्स बॉन्ड रहता है जिसमें से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स फिक्सिंग होता है, राइट. दैट्स वाई नाइट्रोजन इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, या प्लांट प्रोटीन्स हो, एनिमल्स प्रोटीन्स हो, किसी भी तरह में हम लोग इसमें देख सकते हैं, राइट. न्यूक्लिक एसिड्स में भी रहते हैं और एंजाइम्स में भी पाए जाते हैं. The next element in the group is phosphorus. It is the 11th most abundant element in the Earth's crust. Being a very reactive element, it does not occur in free state in nature. In combined state, it occurs in the form of minerals as phosphates. फॉस्फेट्स का मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है. सो इट इज प्रेजेंट इन द एपेटाइट फैमिली सॉल्ट्स. सो दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ एपेटाइट फैमिली. ठीक है, पहला है क्लोरोएपेटाइट, दूसरा है फ्लोरोएपेटाइट, तीसरा है हाइड्रोक्सी एपेटाइट. तो क्लोरोएपेटाइट में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट क्लोराइड्स, राइट. फ्लोरोएपेटाइट में हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट क्लोराइड्स. सेकेंड फ्लोरोएपेटाइट में कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड्स हैं. एंड थर्ड हाइड्रोक्सी एपेटाइट में कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड डाईहाइड्रोक्साइड्स. तो सारे फॉस्फेट्स फैमिली के मेंबर्स हैं. क्लियर. अब इस सारे फॉस्फेट्स फैमिली के मेंबर्स में फॉस्फोरस कंबाइंड स्टेट में है, मतलब फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर. सो सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एनिमेशंस दैट क्लियर्स रेस्ट पार्ट. Are among the important constituents of nucleic acids. That is, DNA and RNA. About 60% of bones and teeth are composed of phosphates. तो फॉस्फेट्स हमारा टीथ में तो मेन कंपोनेंट्स होता ही है, बोन में भी होते हैं. Bone marrow and milk. तो ये सब में मेन सोर्सेस में पाया जाता है, जैसे बोन्स हो गए. ये यॉक में फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, मिल्क में भी फॉस्फोरस रहते हैं. तो ये मेन सोर्सेस हो गए फॉस्फोरस के लिए. फॉस्फोरस फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव. तो एक ऐड है, ऐड के बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट आर्सेनिक. Elements of the group, that is arsenic, antimony, and bismuth, mainly occur as sulfides. For example, arsenopyrite, stibnite, and bismuth glands. Now let's look at the electronic configuration of group 15 elements. The differential electron in these सब मेंबर्स इन लॉबी को लॉबी में है.
electrons enters the NP subshell. Hence, the valence shell electronic configuration of these elements is ns2np3. So, it is evident that these elements have 5 electrons in their valence shell. The electronic configurations of these elements are listed in the table here. So this is the electronic configurations of p block elements. में नाइट्रोजन फैमिली का हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. देख सकते हैं नाइट्रोजन, हीलियम 2s2 एंड 2p3 है. बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग अब्बा, पॉली एंड हुंड रूल का एप्लीकेशंस करते हैं. तो अब्बा रूल्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विद द ऑर्बिटल्स विद देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल विच स्टार्ट विद द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स. तो लोवेस्ट एनर्जी से स्टार्ट होगा तो वाले 1s2 होगा. तो 1s2 मतलब हीलियम हो गया. देन 2s2, देन 2p3. तो 2p3 मतलब p में से px, py, pz3 ऑर्बिटल्स आर देयर इन विच सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड. दैट्स वाई सिंगली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस एज कंपेयर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अदर इलेक्ट्रॉन्स. तो यदि पेयर्ड होगा या हाफ फील्ड होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है. सिमिलरली फॉस्फोरस का भी सेम ट्रेंड चलेगा, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ का भी सेम ट्रेंड चलेगा. सो इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np3. तो ns2 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो भी रहेगा. n यहाँ नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s सबसेल्स है. क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं. Electronic configuration. For example, dinitrogen is an inert gas under normal conditions. Wait, someone is in lobby. First I admit him or her. So no one is in lobby now. Now, let's look at the trends of some atomic properties of group 15 elements, such as atomic and ionic radii. So these are the atomic properties of the elements, atomic and ionic radii. तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या करेगा? ग्रेजुअली साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है. तो एटॉमिक साइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो एज द साइज इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप्स. तो नीचे जाने पर क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलरली, with increase in the size of the nitrogen family, electronegativity decreases down the group. तो डाउनवर्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा. क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनवर्ड्स में डिक्रीज करेगा. Enthalpy and electronegativity. A comparison of these two tables shows that as we move down the group, the atomic radii, covalent radii, and ionic radii increase due to the addition of a new principal energy level in each successive element. There is a considerable increase in the covalent radius from nitrogen to phosphorus. This is due to the effective shielding of the s and p electrons present in the penultimate shell of phosphorus. However, from arsenic to bismuth, there is only a small increase in the covalent radius due to the poor shielding effect of the d electrons of the penultimate shell in arsenic and antimony. तो इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट्स करता है जिसके कारण यहाँ थोड़ा सा ये एक्सेप्शंस दिखेगा.
ठीक है। तो यहाँ इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिल्डिंग इफेक्ट्स क्रिएट करेगा, जिसके कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट्स भी लगेगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट्स क्या होता है, जो इनर का इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो इनर्ट फॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसका कोई ज़्यादा यहाँ साइज में रोल नहीं होगा। तो उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट्स में हम लोग देखते हैं। penultimate shell in bismuth. As a consequence, the effective nuclear charge increases, which leads to a small increase in the covalent radius from arsenic to bismuth. Now let's look at ionization enthalpy. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में जैसे साइज है तो ये घटेगा डाउनवर्ड्स में, ठीक है। तो एक ऐड है, इस ऐड को कंप्लीट होने दो पहले। Group 15 elements show higher values of ionization enthalpy as compared to group 14 elements. तो 14 एलिमेंट से ज़्यादा क्यों दिखते हैं, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं ग्रुप नंबर 15 में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 14, राइट। तो ये यहाँ रीज़न है, हाफ फील्ड मोर स्टेबिलिटी। Smaller atomic radii and stable half-filled electronic configurations. तो दो रीज़न है, एक साइज भी है और दूसरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी रीज़न है। The value of ionization enthalpy decreases. This is due to the gradual increase in the atomic size, which reduces the force of attraction between the valence electrons and the nucleus. Finally, let's look at electronegativity. You know that electronegativity is the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons more towards itself. So see, electronegativity decreases down the group. These elements are listed in the nuclear. हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ ग्रुप में नाइट्रोजन्स का है और लोवेस्ट बिस्मथ का है, बिकॉज बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल, राइट। सो दिस इज द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स और नाइट्रोजन फैमिली और पनिकोमाइट्स। तो इसका तीन नाम है, नाइट्रोजन फैमिली बोले या ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स बोले या पनिकोमाइट्स बोले, तीनों एग्जैक्टली सेम ही होता है। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हियर। So here in this textbook given first introductions in first page that in class 11 you have learned that the p block elements are placed in group number 13 to 18 of the periodic table. Their valence shell electronic configuration is ns2np126 except helium, which is 1s configurations, so it is s block elements, but it is placed in p block because similar behaviors as compared to the s block elements. The properties of p block elements, like that of the others, are greatly influenced by the atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity. तो ये सबसे इसका properties को हम लोग identify कर सकते हैं। The absence of d orbitals in the second periods and the presence of d and df orbitals in the heavier elements starting from the third period onwards have significant effects on the properties of elements. तो जैसे D थर्ड पीरियड्स के बाद इसमें प्रेजेंट हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, और D के बाद F भी प्रेजेंट रहेंगे हेवियर एलिमेंट्स में, ठीक है। सो इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, ब्रिंग डाइवर्सिफिकेशंस इन द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स. Having learned the chemistry of the elements of groups from 13 and 14 of the p blocks periodic table in class 11, you will learn the chemistry of the elements of subsequent groups in this unit. तो 13 14 हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, 15 16 17 and 18 क्लास 12 में पढ़ना है, राइट। सो हियर ग्रुप नंबर 15 इज द फर्स्ट एलिमेंट। सो हेडिंग है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 15
इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, NH2NP3 होगा ग्रुप नंबर 15 इसका। एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम द नॉन मेटालिक टू मेटालिक थ्रू मेटालॉइड्स करेक्टर। तो पहले नॉन मेटल्स होगा ऊपर वाला, बीच में नॉन मेटालिक थोड़ा सा मेटालॉइड्स आ जाएगा, और लास्ट में मेटालिक करेक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हर किसी में दिखा जाएगा, लेकिन इनर्ट गैसेस को छोड़ करके। नाइट्रोजन फैमिली में रहेगा, ऑक्सीजन में भी रहेगा, हेलोजन्स में भी रहेगा, राइट। सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर